Hello students, welcome back to our topic corrosion. In the previous two video lectures we studied what is corrosion. Then we studied the mechanisms of corrosion, that is dry corrosion and wet corrosion. Under dry corrosion we studied all those types of oxide films and corrosive liquids, why dry corrosion happens, we studied that. Then under wet corrosion we studied about the two mechanisms which is responsible for bringing about the corrosion, that is evolution of hydrogen and absorption of oxygen. Both are important from board exam point of view. I had told you in the previous lecture also, now also I'm telling you. So you have to study those two mechanisms very well. Now coming to our next topic, that is the types of corrosion. So here we have 5 different types of corrosion. What are these 5 different types? The galvanic corrosion, which is also called as bimetallic corrosion. The second one is concentration cell corrosion, which is also called as differential aeration corrosion. The third one is pitting corrosion. Fourth one is intergranular corrosion, and fifth one is stress corrosion. We also have a sixth type of corrosion, which is waterline corrosion, but this year it has been excluded from your syllabus. So in this particular video lecture we will be studying galvanic corrosion, concentration cell corrosion and pitting corrosion, and in the next video lecture we will be studying intergranular and stress corrosion. So let's begin with the first topic, first type of corrosion, that is galvanic corrosion. Already you know what is a galvanic cell, or not corrosion in terms of corrosion, but then you know what is a galvanic cell. Okay, so maybe while studying this topic you will remember, okay, its involvement of two different metals which is electrically connected. For example, यहाँ मैंने डायग्राम भी आपको दिया है, और गैल्वेनिक corrosion के कैसे होता है, क्यों होता है, ये भी मैंने डायग्राम में बताया है. ओके तो जब टू डिसिमिलर मेटल्स, जैसे जो अलग अलग मेटल्स लाइक जिंक एंड कॉपर, व्हेन दे आर इलेक्ट्रिकली कनेक्ट किया इनको और इलेक्ट्रोलाइट में प्लेस किया, सो आउट ऑफ दिस टू मेटल्स विच विल करोड first, I mean which will corrode, that is which will act as anode and which will act as cathode. So as I had told you before, in galvanic series the metal which is placed at a higher position, in galvanic series a metal which is placed at a higher position in comparison to the other metal, that metal will act as an एनोड. जो एनोड का काम करेगा वही कॉरोड करेगा. तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम में भी बताई है. लेट मी यूज़ द पॉइंटर. ओके, so here this is a galvanic cell where the zinc electrode and the copper electrode is introduced in an electrolyte. Okay, they are separated from each other and electric current is passed through it. Now zinc is more active metal in comparison to copper. Copper is little bit nobler. Okay, zinc is not at all that nobler, it is less noble. So जो less noble है वो एनोड का काम करेगा और जो more noble है वो कैथोड का काम करेगा. अब ऐसा होगा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन जिंक जो है इट विल स्टार्ट लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स. ओके, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, वो 2 मिस हो गया. इट शुड बी 2 electrons. These electrons will move towards the cathode by means of electric current. एनोड से कैथोड के पास वो इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे and these electrons will be taken up by copper. So what will happen actually what will happen is, ये जो आप जिंक का कंप्लीट साइज यहाँ पे देख रहे हो, it will slowly and steadily dissolve in the electrolyte. That is, the size of the zinc rod will decrease and the electrons which are passing to copper, that is copper का साइज जो है, इलेक्ट्रोड कैथोड का साइज जो है वो
इंक्रीज होगा. Followed everyone? So in this way the cathode remains protected and anode is at a greater loss. This type of corrosion is called as galvanic cell corrosion. Now where is this corrosion? This type of corrosion is seen. For example, it is written here, steel pipes. Okay, use of steel pipes in copper storage tanks. तो कॉपर स्टोरेज टैंक्स में जो स्टील पाइप्स रहते हैं दैट गेट्स कोरोडेड इजीली. फिर स्टील स्क्रूज जो होते हैं ब्रास में, ब्रास इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ कॉपर एंड, यस, सो आई लीव इट टू यू, क्योंकि ये हमने प्रैक्टिकल्स में पढ़ा था. तो आप मुझे बताएंगे जब मैं टेस्ट लूँगी ब्रास इज द कॉम्पोजिशन ऑफ वॉट. Okay, then the third example is soldering of copper wires with lead and antimony solders. So in this way copper remains protected, and the other metal which is at a higher position in galvanic series undergoes galvanic cell corrosion. So in the exam when it is asked, you are supposed to write the detailed explanation, the reaction and the diagram is a must. Okay, let's move further to concentration cell और डिफरेंशियल एरिएशन करोशन. डिफरेंशियल एरिएशन नाम से ही मालूम पड़ता है देयर इज डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर. मतलब एक ही एरिया है, एक ही मेटालिक सरफेस है, एक ही मेटालिक रॉड है, बट एक्सपोजर टू एयर, that is exposure to air, is different at different areas of the metal rod. The best example is given in the diagram. In the textbook they have, I think they have given two diagrams, which is not required. We require only one simple diagram to explain the entire topic. So here you can see in this diagram a beaker is taken. beaker के अंदर जिंक सल्फेट सोल्यूशन है और उसके अंदर जिंक रॉड को इमर्स किया है. ये जिंक रॉड का इमर्शन इज पार्शियली जिंक रॉड को हमने इमर्स किया है, मतलब आधा जिंक सल्फेट के अंदर है और आधा बाहर है. ओके, नाउ बिफोर आई स्पीक डायरेक्टली अबाउट दिस, वन सिंपल एग्जाम्पल. Let's take one simple example of sea. When we swim in the sea water, whenever what happens, there is less oxygen in the sea water. When you put your face into the sea water or whatever while swimming, what happens, you need oxygen, because in water when your face is immersed in water, what happens, जब आपका चेहरा पानी में, आपका मुंह पानी के अंदर है, तब क्या होता है, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन कम रहता है, मतलब आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है. एज सून एज यू जस्ट कम अप टू द सरफेस, अबाउ द सरफेस ऑफ द सी वाटर, व्हाट हैपन्स, यू गेट मोर ऑक्सीजन. बस ऐसा ही कुछ यहाँ पे, यू आर द सेम मेटल रॉड. Okay, you are the same metal rod, but exposure is of air is different to different areas. Same is the case over here also. जितना पार्ट जिंक रॉड का जिंक सल्फेट सोल्यूशन में इमर्स्ड है, यहाँ पे आप ब्लैकिश पार्ट देख सकते हैं, ये जितना पार्ट इमर्स्ड है वहाँ पे देर इज लेस ऑक्सीजन. ओके, while the part above the जिंक सल्फेट सोल्यूशन इज मोर ऑक्सीजनेटेड. रॉड एक ही है, मेटल रॉड, बट उसका एक्सपोजर टू एयर जो है वो अलग अलग है. सो जो लेस ऑक्सीजनेटेड एरिया है वो एनोड का काम करता है एंड गेट्स कोरोडेड, यानी कि खराब होना यहाँ से शुरू होता है. यू विल सी दैट द जिंक रॉड which is the part of the zinc rod which is immersed in the zinc sulfate solution starts losing electrons. Okay, so when it start losing electrons, what happens, ये जो उसका area है, portion जो है zinc rod का, it starts getting dissolved in zinc sulfate solution. मतलब ये zinc rod जो है धीरे धीरे zinc sulfate में dissolve होना start होता है. और जो ऊपर का part है, यहाँ का part, okay, this part remains completely protected because यहाँ पे क्या है, more oxygenated area. The more oxygenated or the aerated part act as anode, act as cathode,
and it remains unaffected. तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखना है. कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल डेवलप होना. कॉन्सेंट्रेशन सेल डेवलप या सेटअप होने का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर is different at different areas of one same metal. Okay, so in the one same metal, when the exposed areas are different, concentration cells are developed, which we are going to see now in pitting corrosion also. Okay, I hope you all followed till here. So concentration cell corrosion is nothing but the corrosion which occurs when the metal is exposed to different concentrations of air at its different portions. Okay, let's proceed further with pitting corrosion. Okay, we have the reactions over here. तो reactions तो वही है, zinc loses electrons and what happens, these electrons are taken up by the more oxygenated area, that is moisture, to give you hydroxide ion. So the overall reaction is something like this. So ये reaction आपको एग्जाम में लिखना है, प्लस डायग्राम आपको करना है और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है. ओके, नाउ द थर्ड वन इज पिटिंग करोशन. ओके, पहले हम सबसे पहले बिना रीड किए, अगर आप रीडिंग स्टफ देखोगे तो आपको लगेगा कि बाप रे कितना कुछ लिखना है, बट नहीं. फर्स्ट वील गो टू द डायग्राम so as to understand what is written in this PPT. So this is the metal. Okay, here you can see the corrosion product is formed. ये आप देख रहे हो कैविटी फॉर्म हो गया है. ओके, यहाँ पे ब्लैकिश पार्ट का corrosion प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है. ये यहाँ पे जो एरिया है ये डार्क है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कम है. और ये जो पूरा एक मेटल है, ये मेटल पाइप ले लो, ये मेटल का कोई भी रॉड ले लो, ये मेटल का कुछ भी ले लो आप. ओके, एंड दिस मेटल फॉर एग्जांपल इट इज़ आयरन मेटल. तो अभी पिटिंग कोरोजन को कैसे समझना है, ये चीज़ हमने वेट कोरोजन में ऑलरेडी अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन हम लोग पढ़ चुके हैं. ओके, लेकिन हर कोरोजन को कैसे एक्सप्लेन करना है, हर टाइप ऑफ कोरोजन में हमको क्या लिखना है, उसको कैसे डिस्क्राइब करना है, उसका रिएक्शंस कैसे लिखना है, वो आना चाहिए. अदरवाइज व्हेन यू रीड दिस ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कोरोजन यू विल फाइंड इट सिमिलर ओनली, बट देन यू शुड नो कि एक पर्टिकुलर टाइप के लिए मुझे क्या लिखना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. ओके, सो हियर आफ्टर रीडिंग द डायग्राम, नो व्हाट इज पिटिंग करोशन. जैसे कि कोई भी मेटल सरफेस ले लो, अब मेटल्स हम लेते हैं तो वी यूज़ इट इन डिफरेंट मशीन्स. मेटल्स को बहुत सारी जगहों पे हम मशीन्स में यूज़ करते हैं, लोडिंग में यूज़ करते हैं, या स्लाइडिंग करना है तो यूज़ करते हैं. तो दिस मेटल कम्स अक्रॉस टू मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस. सो इन सच केसेस व्हाट हैपेंस, रफनेस डेवलप होता है, रफ हो जाता है उसका सरफेस एरिया, स्क्रैचेस फॉर्म होते हैं, और अटैक्स तो होंगे ही. मॉइस्चर अटैक होगा, कुछ नहीं तो मॉइस्चर तो डेफिनेटली होगा व्हेन द एयर इज़ ह्यूमिड. या फिर अगर कोई इंडस्ट्री में मेटल्स जहाँ पे यूज़ है देयर विल बी अटैक, केमिकल अटैक होगा. ओके, तो ये रफनेस, स्क्रैचेस, ये सब जो भी मेटलिक सरफेस पे होता है वहाँ पे इम्प्यूरिटीज़ जमा होती है. ये इम्प्यूरिटीज़ फॉर एग्जांपल मान लो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स है या कुछ भी कचरा है या जो भी है, दैट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द मेटल सरफेस, पूरे मेटल सरफेस पे जमा होते हैं. ओके, तो जब वो मेटल सरफेस पे जमा होते हैं वो डस्ट से कवर हो जाता है. डस्ट से कवर होगा मतलब क्या, वो एरिया में ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा. दैट एरिया विल हैव least oxygenated, or it is not at all well aerated. I think this is what I have written over here. It is not well aerated or least oxygenated as compared to the rest of the area of metal surface. For example, best example, अगर आप क्लासरूम में होते तो मैं आपको वहीं पे बताती, ये एग्जाम्पल तो आपको झट से समझ में आता. जैसे कि द वन हु इज सिटिंग अंडर फैन, फैन के नीचे जो बैठा है उसको ज़्यादा हवा लगेगी.
ओके। और जो फैन से दूर बैठा है उसको कम हवा लगेगी, तो जिसको कम हवा लगेगी उसको ज़्यादा स्वेटिंग होगा, सो दैट इज़ लीस्ट ऑक्सीजनेटेड, तो उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होगी। और जो फैन के अंडर बैठा है वो मोर एरिएटेड है, मोर ऑक्सीजनेटेड है, तो वो क्या होगा, कैथोड का काम करेगा और वो प्रोटेक्टेड रहेगा। इन सिंपल लैंग्वेज सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स जमा होते हैं, अगर ये क्लीन नहीं किया गया, इसको ऐसे ही छोड़ा गया, तो वो क्या होगा, उसमें हवा नहीं पहुँचेगी, लीस्ट ऑक्सीजनेटेड होगा, और वो एरिया जहाँ हवा नहीं पहुँचेगी, दैट डस्ट पार्टिकल एरिया जहाँ पे डस्ट जमा हुआ है, दैट एरिया विल एक्ट एज एनोड, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू द अदर रेस्ट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द मेटल। तो जो बाकी का जो एरिया है बचा हुआ, दैट विल एक्ट एज कैथोड। ओके, अब इससे होता क्या है, एनोड तो समझा, कैथोड भी समझा। ओके, तो यहाँ पे लेस ऑक्सीजन होने की वजह से ये एनोड का काम कर रहा है, तो कोरोजन होगा क्यों, कोरोजन तब होगा जब यहाँ पे कोई कोरोसिव लिक्विड गिरेगा या फिर कोई केमिकल अटैक होगा, या कुछ नहीं तो मॉइस्चर तो डेफिनेटली अटैक करता ही है। ओके, moisture is always present in air. Moisture is nothing but composition of oxygen and water. So this is what happens over here in this area. Moisture जब attack होगा उससे क्या होगा, okay, corrosion will begin where the impurity has been formed, और वहाँ पे cavities form होंगी, स्मॉल डिप्रेशन, शैलो डिप्रेशन, कैविटीज, होल्स, जो भी आप नाम लो, वहाँ पे क्या होगा, पिट्स फॉर्म होगा। दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, पिट्स। और ये कहाँ दिखता है, जनरली पैसिव मेटल्स में। पैसिव मेटल्स जैसे कि अभी हमने इसमें पढ़ा था स्टेबल ऑक्साइड फिल्म में, नॉन पोरस ऑक्साइड फिल्म विच इज़ वेरी मच प्रोटेक्टिव, वहाँ मैंने, अगर आप वो वीडियो वापस सुनेंगे तो वहाँ मैंने एक लाइन बोला है what is that line, this protective layer remains protected, which is non porous, remains protected until it is disturbed। अगर उसमें क्रैकिंग डेवलप होती है या कोई स्ट्रेस फॉर्म होता है तो करोजन में हैपन वंस अगेन, तो वही चीज़ यहाँ पे होती है। जैसे कि स्टेनलेस स्टील लो या कुछ भी लो, अगर वो स्मूथ फिनिशिंग नहीं होगी, सरफेस पे रफनेस रहेगा या स्क्रैचेस रहेगा, then definitely ये pitting corrosion will take place। okay, तो क्रैकिंग अगर फॉर्म होगी प्रोटेक्टिव फिल्म में, then this will lead to the formation of cathode and anode। तो एनोड वो है जहाँ पे which is least oxygenated, which undergoes oxidation। so here iron undergoes oxidation, moisture takes up the electrons from the iron which is acting as cathode। so this is the ओवरऑल रिएक्शन जो आपको पिटिंग करोजन में लिखना है। ओके, सो हियर फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन पैसिव मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड एलॉयज सच एज स्टेनलेस स्टील शोज सिग्निफिकेंट पिटिंग इन क्लोराइड एनवायरनमेंट। क्लोराइड एनवायरनमेंट होगा तो करोजन स्टेनलेस स्टील का हो सकता है। कब होगा, जब वो स्टेनलेस स्टील अच्छे से बना होगा तो नहीं, व्हेन इट इज उसका प्रॉपर शेप, प्रॉपर कास्टिंग अगर उसका हुआ है, देन इट विल नॉट हैपन। बट द मोमेंट उसके अंदर रफनेस आए, स्क्रैचेस आए, देन पिट्स विल बी डेवलप, पिट्स विल बी डेवलप वेयर द इम्प्योरिटी हैज बीन फॉर्म्ड। ओके, सो दिस इज अबाउट पिटिंग करोजन। आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखना है, डायग्राम भी करना है और उसका रिएक्शंस भी करना है। ओके, so here there are the three types of corrosion। now in the next video lecture we will see uh, the other two types of corrosion। thank you students, thank you very much।